Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the atomic number. We started some terms related with the atoms, and in which first topic that we discussed about that which was atomic number. The atomic number sorry, and we discussed that atomic number means number of protons. Atomic number means number of protons present in the nucleus of an atom is known as atomic number. Okay, in today's class let us start the one more topic, that is mass number, which is denoted by E. Since the mass of an atom is practically due to the proton and neutrons. The mass of an atom is due to the proton and neutrons which are present in the nucleus. That means we can say that mass of atom is due to the proton and neutron which are present in the nucleus. Present in the nucleus of an atom, or we can say that the mass of an atom is represented by the proton and neutron, or we can also say that it is the mass of nucleus. Got it? To define this mass, a term mass number is used. To define the mass, a term which is called mass number is used, and the mass number means total proton and neutrons. Mass number means total proton and neutrons which are present in the nucleus. Got it? So if we make a definition, then we can say that total number of protons and neutrons, total number of protons and neutrons present in the nucleus, is called mass number. The total number of proton and neutrons present in the nucleus is called mass number. Got it? Okay. Proton and neutrons both are present in the nucleus of an atom. That's why they also called nucleons. इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? These are also called nucleons. If we use nucleon in the place of this, then the definition becomes the nucleons present in the nucleus. The nucleons present in the nucleus is called mass number. Got it? So by using any one of these definition, we can define mass number. The first is total number of proton and neutrons present in the nucleus is called mass number, and the second definition is the nucleons present in the nucleus. The nucleons present in the nucleus is known as mass number. Or if we want to make definition more clearly, then we can use an atom term also. So it becomes total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. Yeah, the total nucleons present in the nucleus of an atom is known as mass number. Got it? If we make the formula, then we can say that mass number
A is equals to number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है उनका टोटल करने पर अपने को क्या मिलेगा, मास नंबर अपने को ऑब्टेन होता है। गॉट इट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। कार्बन का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में कितने हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर अपने को इसका मास नंबर निकालना हो तो अपन बोल सकते हैं मास नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट मीन 6 प्लस 6 दैट इज 12, जो अपन इसका यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो कल अपन ने लिखा था C6H12, सॉरी C6C12, तो ये था इसका मास नंबर, जो इस तरीके से अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। अब एक थोड़ा सा एक अलग से टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, मास नंबर वर्सेस एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही चीजें, यानी कि मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही मासेस को डिनोट करती हैं, दोनों ही मासेस को डिनोट करती हैं, लेकिन एक स्लाइटली डिफरेंस इनके अंदर होता है। मास नंबर जो है, इफ वी कंपेयर दैट मास नंबर एंड एटॉमिक मास, तो ये हमेशा कंप्लीट इंटीजर होगा। जैसे अभी अपन ने निकाला 12, बट एटॉमिक मास जो है ये कंप्लीट इंटीजर भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। गॉट इट। जैसे एक डिफरेंस अपन बात करें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के लिए लिखें अपन, तो क्लोरीन का मास नंबर अपन लिखते हैं 35, लेकिन जब उसका एटॉमिक मास लिखते हैं तो वो लिखते हैं अपन 35.5 U। यूनिफाइड मास उसकी यूनिट है। गॉट इट। तो ये दोनों यहां पर फर्क आता है, यहां पर हल्का सा, लेकिन कोई इतना ज्यादा कंसिडरेशन नहीं लेना है क्योंकि नॉर्मली अपन इसी से काम चलाते हैं। हाँ, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के केस में मास नंबर भी 12 है और एटॉमिक नंबर भी 12 है, तो ये दोनों में थोड़ा सा यहां पर फर्क होता है। और ये कब आता है इससे अलग, जब एटम्स का आइसोटॉप्स मिले, नेचर में क्या मौजूद हो, एटम्स की आइसोटॉप्स हो उस एलिमेंट की, तो उस कंडीशन में ये एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शनल हमें ऑब्टेन हो सकता है। गॉट इट, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, जो अपन ने बिल्कुल स्टार्ट में यूज किया था टेबल बनाने वाले टाइम पर। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट the symbol, complete symbol with the mass number and atomic number। Got it? यानी कि अपन बोल सकते हैं representation of atom with mass number and एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सा है, इसमें जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल यहां पे लिखा जाता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। गॉट इट। सिंबल अपन ने लिख लिया, उसके नीचे के साइड में यहां पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एटॉमिक नंबर अपन इस कॉर्नर में भी लिख सकते हैं या इस कॉर्नर में भी, डिपेंड हम पर करता है। गॉट इट। और जो उसका मास नंबर है
वो लिखा जाता है अपर साइड में। ओके, इसमें भी वही रूल है, चाहे यहां लिख लें चाहे यहां लिख लें, बस ये ध्यान रखना होता है सिंबल के नीचे लिखना है किसका, क्या लिखना है अपने को, एटॉमिक नंबर डाउन साइड में होता है और मास नंबर अपने को अपर साइड में अपने को शो करना होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है जिसका सिंबल है एक्स और उसका एटॉमिक मास है ए और मास नंबर एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर जो है वो तो है उसका ए और मास नंबर मान लेते हैं अपन, दैट इज जेड, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, दैट इज जेड एंड दैट इज ई। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल कंसीडर करें, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। गॉट इट? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। गॉट इट? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो इस तरीके से अपन किसी भी एटम के जो मासेस, जो एटम है उसको कंप्लीटली अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं विथ यूजिंग द मास नंबर एज वेल एज एटॉमिक नंबर्स। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप। The next topic is isotopes. Okay, before to describe it, let me consider some examples so you can understand more about it. 1H1, 1H2, 1H3. If you got some idea about it? No? Let me take one more example. C612, C614. Now, do you get any idea? No? Let me take one more example. Cl 1735, Cl 1737. Now, have you got some ideas about it? Okay. No, then let me clear you. If we consider the first example, then what is the similar? What is the similarities between them? They have same atomic number and they are atoms of same element which have same atomic numbers, but they have different mass numbers. They have different mass numbers. Similarly, these two are atoms of carbon having similar atomic number but different mass numbers. Similarly, they have similar atomic number but they have different mass numbers. Got it? Such type of atoms of element having same atomic number सेम होगा कि एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन है एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम होगा, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होता है। गॉट इट? तो सेम एलिमेंट के एटम्स, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम। बट
they have different mass numbers are called isotopes of that element. Again, I am repeating the definition. The atoms of an element, the atoms of an element having same atomic number but different mass numbers are called isotope of that element, are called isotopes of that element. Got it? सिंपल लैंग्वेज बोले तो किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, क्या हो, मास नंबर अलग अलग हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स बोलते हैं. क्या बोला जाता है उन्हें, उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स. गॉट इट? अंडरस्टैंड? द फर्स्ट एग्जांपल इज isotopes of, क्या है ये, हाइड्रोजन. सो दैट इज isotopes of हाइड्रोजन. गॉट इट? isotopes of हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं इनको पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है. इसको बोला जाता है प्रोटियम. एक प्रोटॉन होता है केवल सिंगल, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन नहीं होता. नॉर्मल जो हाइड्रोजन है वो यही होता है अपन जो लिखते हैं, इसे बोलते हैं अपन प्रोटियम. गॉट इट? सेकंड जो है वो कहलाता है ड्यूटेरियम. दैट वन, इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम. गॉट इट? दो गया ना एटॉमिक मास, तो ड्यूटेरियम 2. इसको बोला जाता है ट्राइटियम. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. गॉट इट? अब इनके लिए सिंबल्स भी काम में लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी आप कंसिडर कर लेना. जो प्रोटियम है उसके लिए सिंबल काम में लिया जाता है H. इसे शो करते हैं अपन इसको H से. इट इज डिनोटेड बाय H. गॉट इट? जो सेकंड है ड्यूटेरियम, इसको डिनोट किया जाता है D से. इट इज डिनोटेड बाय D. और थर्ड ट्राइटियम जो इसको डिनोट करते हैं अपन T से. तो जरूरी नहीं आपको ये नेम दे, ये भी पूछे जा सकते हैं. गॉट इट? और ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, पूछा जाता है राइट द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. गॉट इट? सेकंड है कार्बन. कार्बन के दो आइसोटॉप्स हैं. सेकंड एग्जांपल अपना कौन सा है, दैट इज द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन के नेचर में हालांकि दो ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टेबल फॉर्म के अंदर ये दो आते हैं. गॉट इट? एंड थर्ड एग्जांपल इज isotopes of chlorine. These are isotopes of chlorine. Got it? Understand? Now, since, अगर अपन इसको थोड़ा ऐसे एक पॉइंट आता है, since isotopes have same atomic number, सेम एटॉमिक नंबर. आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण से इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नॉर्मली आयन नहीं होना चाहिए नॉर्मल एटम में.
तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. Isotopes have same chemical properties. Got it? Isotopes have different atomic masses, or we can say that different mass numbers. इनके mass numbers different होते हैं. That's why they have different physical properties. इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. तो वी कैन से दैट आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. गॉट इट? About the calculations of the average atomic mass and more about the isotopes, the uses of isotopes, we will discuss in next class. Thank you.